Good morning, friends. How are you? I hope you all are well during this pandemic. I am Dr. Biswaranjan Misra, Assistant Professor, DDC Utkal University. First of all, I welcome you all to my lecture series on business mathematics for plus 2 second year students. Now, this lecture series will consist of 50 to 60 classes of 35 to 40 minutes duration. This lecture series will cover the entire syllabus of plus 2 second year students. First of all, I request all the students to watch my slides, my video lectures, and ask any doubt to me in the email ID which I will share at the end of this video lecture with you. So first, let me share my slides with you. Friends, I have already told that I am Dr. Biswaranjan Misra. I am working as an assistant professor in Utkal University, Banipur. First, let me tell you who is my inspiration for this lecture series. My inspiration for this lecture series is Professor Ranjan Kumar Bal. He has started a lecture series for plus 3 students, commerce students, and taking inspiration from him, I want to start a lecture series for plus 2 second year commerce students who are going to face their examination very soon. So let me first introduce to you my teacher of business mathematics and statistics, that is Professor P.K. Hutta. He is currently the HOD of PG Department of Commerce, Utkal University. Next slide. Okay. ये जो लेक्चर सीरीज में हम 5 यूनिट पढ़ेंगे. क्या क्या यूनिट आपके सिलेबस में है पहले बात करेंगे उसके ऊपर. आपके सिलेबस में 5 यूनिट है. यूनिट 1, unit 2, unit 3, unit 4 and unit 5. Now please see unit 1 and unit 2. These two units, unit 1 and unit 2, these two units are pure mathematics. These two units are mathematics. And these unit 3 and unit 4 related to statistics. Okay. So there are 4 units. Fifth one is the project work. Okay. Unit 1 and unit 2 are mathematical, and unit 3 and unit 4 related to statistics. These are the 4 units which we will cover. यूनिट 1 में आपका 4 चैप्टर है. कौन कौन से चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर इज डिटर्मिनेंट्स, सेकंड चैप्टर इज मैट्रिसेस, नेक्स्ट चैप्टर इज सेट थ्योरी, नेक्स्ट चैप्टर इज फंक्शन. सिमिलरली यूनिट 2 में आपका 4 चैप्टर है. लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. सो टोटल यहाँ पर 8 चैप्टर है यूनिट 1 एंड 2 में. ये मैथमेटिकल नेचर का है. और स्टैटिस्टिक्स में आपका 2 चैप्टर है. फर्स्ट वन इज सेंट्रल टेंडेंसी और सेकंड वन इज डिस्पर्शन. सो आप अगर पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन को कंप्लीट करेंगे. एक बार स्टैटिस्टिक्स पोर्शन कंप्लीट हो गया फिर हम जाएंगे मैथमेटिकल पोर्शन में. सो पहले हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर. स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें पहले शुरू करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, फिर हम जाएंगे डिस्पर्शन के ऊपर. ओके. नाउ प्लीज सी. फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या है पहले बात करेंगे, फिर हम जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर के ऊपर. पहले स्टैटिस्टिक्स क्या है उसके बारे में देखते हैं. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. ओके. नाउ प्लीज सी, as the definition, statistics is a science. So what is a science? All science are one body of knowledge. It's a systematic body of knowledge. Statistics is a systematic body of knowledge. Statistics एक body of knowledge है. और ये किसके ऊपर डील करता है? ये 4 चीज के ऊपर डील करता है. Statistics deals with collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. So
अंडरलाइन करेंगे किसको, न्यूमेरिकल डाटा। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा, कुछ न्यूमेरिकल डाटा मींस द डाटा व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, नंबर फॉर्म में जो डाटा हैं उसको कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस, इट्स अ साइंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, फिर उससे मीनिंग निकालेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। ओके, सो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स का मेन फीचर्स है डाटा। विदाउट डाटा देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मेन थिंग क्या है, डाटा इज द मेन थिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो व्हाट इज डाटा? डाटा का मतलब क्या है? डाटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमेनन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप लोग कितना मार्क 10th में रखे हैं मैं जानना चाहता हूँ। दो स्टूडेंट से, एक है राम, एक है हरि। दो स्टूडेंट से राम कितना मार्क रखा है मैं जानना चाहता हूँ, हरि कितना मार्क रखा है मैं जानना चाहता हूँ। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स? फर्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ। सपोज मैथ में राम रखा है 50 और हरि रखा है 30। और लेट्स से साइंस, साइंस में मैथ रखा है 40, हरि रखा है 20। और सोशल साइंस और एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर राम रखा है 40 और यहाँ पर ये रखा है सब कुछ 30। दीज आर द फिगर्स। ओके, नाउ प्लीज सी, ये जो एक एक फिगर में कलेक्ट किया, ये सारा फिगर को बोलते हैं डाटा। ओके, सो डाटा मीन्स ये फिगर किसके लिए इसमें है, ये फिगर किसके लिए है, ये सब फिगर है राम और हरि का मार्क्स का। ओके, सो दीज आर ए डाटा। डाटा मीन्स raw facts and figures, but these raw facts and figures regarding a particular phenomenon। यहाँ पर particular phenomenon क्या है, यहाँ पर particular phenomenon है मार्क्स। सो मार्क्स के बारे में यहाँ पर डाटा दिया गया है। सो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फिनोमेनन के ऊपर डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर वो डाटा को प्रेजेंट करते हैं, फिर वो डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर वो डाटा से मीनिंग निकालते हैं। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स का मार्क दिया हुआ है। मैं पहले इस डाटा को कलेक्ट किया, राम से डाटा कलेक्ट किया, हरि से डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट किया हूँ, एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया हूँ। फिर इसके ऊपर कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स, टेक्निक्स डालकर मैं क्या कर सकता हूँ, राम का मार्क को हरि के मार्क के साथ कंपेयर करके बता सकता हूँ ये दोनों में से अच्छा स्टूडेंट कौन है। ओके, सो दिस इज स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स में एक पर्टिकुलर फिनोमेनन के ऊपर डाटा कलेक्ट किया जाता है और डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, डाटा को एनालिसिस किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। सो बिना डाटा का स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स का जान है डाटा। विदाउट डाटा यू कैन नॉट डू स्टैटिस्टिक्स। ओके, नाउ प्लीज सी, so I have told that data are to be edited, data are to be processed, data are to be organized, okay, and data are to be interpreted. So अभी मैं पढ़ा दिया statistics क्या है। What is statistics? We have discussed. So statistics क्या है? Statistics एक क्या है? Statistics एक साइंस है जो डील करता है किसके ऊपर, डाटा के ऊपर। कौन सा डाटा? ऑल डाटा आर न्यूमेरिकल डाटा। यहाँ पर क्या किया जाता है, डाटा को कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड विल डिस्कस दैट इज टू इंपोर्टेंट टर्म्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आप देखिए दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा दो टर्म? एक टर्म है वेरिएबल और एक टर्म है वेरिएबल और एक टर्म है एट्रीब्यूट। दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म को हम बोलते हैं वेरिएबल और एक टर्म को बोलते हैं एट्रीब्यूट। दो टर्म इंपॉर्टेंट है, एक है वेरिएबल और एक टर्म है एट्रीब्यूट। पहले हम बात करेंगे ये वेरिएबल क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये एट्रीब्यूट्स क्या है।
वेरिएबल्स क्या है? आप स्टैटिस्टिक्स में हमेशा देखेंगे दो टर्म हमेशा आएगा, एक टर्म आएगा वेरिएबल और एक टर्म आएगा एट्रीब्यूट्स। तो अब ये बात करेंगे वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स आर दोज कैरेक्टर्स दैट वेरीज। वेरिएबल आर दोज थिंग्स व्हिच वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स। वो चीज जो एक से दूसरे के ऊपर वेरी करता है उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, वेरिएबल्स आर दोज थिंग्स which varies and which can be measured. So सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेरिएबल्स, ऐसा चीज है जो चीज क्या हो सकता है, मेजर हो सकता है। सो वेरिएबल्स आर मेजरेबल थिंग्स, मेजरेबल फिनोमिनन्स। वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। एग्जाम्पल देते हैं वेरिएबल्स का। मार्क एक वेरिएबल है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, दो स्टूडेंट्स से 5 स्टूडेंट्स का मार्क को आप क्या कर सकते हैं, चेंज होता है। मार्क पहले स्टूडेंट का मार्क दूसरे स्टूडेंट के मार्क में चेंज होता है, दूसरे का तीसरे में चेंज होता है, चौथे का चेंज होता है। तो वेरिएबल्स आर चेंजेबल फैक्टर्स। ओके, वेरिएबल्स ऐसा चीज है जिसका वैल्यू वेरी करता है और जो चीज को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे एज, आपका एज कितना है मैं मेजर कर सकता हूँ। आपका हाइट कितना है मैं मेजर कर सकता हूँ। आपका वेट कितना है हम मेजर कर सकते हैं। आपके बॉडी में टेम्परेचर कितना है हम मेजर कर सकते हैं। एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कितना हम मेजर कर सकते हैं। सेल्स हुआ है कितना हम मेजर कर सकते हैं। एक का इनकम आपका कितना है हम मेजर कर सकते हैं। आपका एक्सपेंडिचर कितना है मेजर कर सकते हैं। सेविंग्स कितना है मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स क्या है, वो जो चीज है जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और दोज थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन चीज इज एट्रीब्यूट्स। What is attributes? Attributes क्या है, just opposite of variables. Variables are those things which can be measured. Variables are those phenomena which can be measured. But attributes are non-measurable phenomena. So attributes को हम क्या नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। Okay, and these are qualitative in nature. So variables generally quantitative का होता है और एट्रीब्यूट्स जनरली क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव चीज क्या है, जनरली आपका सेक्स क्या है, आपका मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ये इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, इसको कैटेगोराइज किया जा सकता है। सो एट्रीब्यूट्स कैन बी कैटेगोराइज्ड और एट्रीब्यूट्स कैन बी रैंक्ड। मैं बताऊंगा। सो आप ऑनेस्ट हैं या नहीं, तो इसको कैटेगोराइज कर सकते हैं, यू मे आर ऑनेस्ट और नॉट ऑनेस्ट। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी। ओके, दीज आर रिलीजन क्या है, ये आपका मेजर नहीं हो सकता है, इसको कैटेगोराइज कर सकते हैं। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप क्रिश्चियन हैं। आपका ब्यूटी कितना है, ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर बट ब्यूटी कैन बी रैंक्ड। सो आप देखेंगे जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्या होता है, नंबर्स दिया जाता है, वो एक्चुअली नंबर्स नहीं है, वो रैंक दिया जाता है। सो इन ब्यूटी कैन बी रैंक्ड। सो क्वालिटेटिव फिनोमिनन्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये वेरिएबल्स को हम मेजर कर सकते हैं, बट एट्रीब्यूट्स को हम, दीज आर मेजरेबल थिंग्स, बट attributes are not measurables. These cannot be measured, not measurable. So it can be categorized or it can be, एट्रीब्यूट्स को कैटेगोराइज कर सकते हैं या नहीं तो एट्रीब्यूट्स को क्या कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। हमें क्लियर, हमें क्लियर। सो दो चीज में पढ़ाया स्टैटिस्टिक्स में, दो चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, एक रहेगा वेरिएबल, एक रहेगा एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल्स are measurable phenomena, attributes are non-measurable phenomena. Variables are generally quantitative in nature, attributes are qualitative in nature. Variables को हम मेजर कर सकते हैं लेकिन attributes को हम कैटेगोराइज कर सकते हैं या रैंक कर सकते हैं। तो जनरली आप, हम जो पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स का मतलब दोज थिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड। तो स्टैटिस्टिक्स में हम जो पढ़ेंगे जनरली अभी इस नेचर प्लस 2 स्टेज में हम सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। Okay, so we will deal only with variables. Variables means those things which can be measured. तो next हम बात करेंगे what are the formation of a series। जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं
तो डाटा को हम लॉजिकली कलेक्ट करते हैं. सो देयर आर 3 वेज ऑफ कलेक्टिंग और कैटेगराइजिंग डाटा. डाटा कलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज 3 वे में कर सकते हैं. इसको बोलते हैं सीरीज. अरेंजमेंट ऑफ कलेक्टेड डाटा लॉजिकली इन ए सीक्वेंस मैनर इज नोन एज सीरीज. तो हम क्या कर सकते हैं, सीरीज पढ़ेंगे. अभी स्टैटिस्टिक्स जानने से पहले सीरीज पढ़ना पड़ेगा. मैं बताया था स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ डाटा and data are to be collected. Once data are collected, then they are arranged. They are arranged logically, and this there can be 3 type of arrangement of data in statistics. कौन-कौन सा 3 तरह का है? पहला है there can be individual observations. There can be individual observations. So data can be collected individually. So there can be individual observations. Next one is discrete series. Next one is continuous series. तो 3 तरह का डाटा कलेक्शन होता है. पहले बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअल सीरीज. सेकंड को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज. थर्ड को बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज. सो डाटा कलेक्शन 3 वे में हो सकता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज. अभी मैं आपको बताऊंगा ये इंडिविजुअल सीरीज क्या है, फिर हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज क्या है, फिर हम बात करेंगे ये कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, और इसके बारे में इसका क्या क्या एप्लीकेशन है एक एक करके बात करें. सपोज आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स है. कितना स्टूडेंट्स है? या 30 स्टूडेंट्स है. देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास. ओके, एंड आपके टीचर क्या किए, एक क्विज किए. कितने का? 20 मार्क्स वाला क्विज किए. सो 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, 20 मार्क वाला क्विज किए आपके टीचर क्लास में. ओके, अगर क्विज किए, सब लोगों को कुछ ना कुछ मार्क दिया गया है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है सपोज. तो अगर सब लोगों को कुछ ना कुछ मार्क दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 30 लड़का क्विज दिया कितना मार्क रखा है, हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 वे में ये डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. पहला अरेंजमेंट कर सकते हैं इंडिविजुअली, इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज क्या करेंगे, पहले क्लास में जाएंगे और एक एक स्टूडेंट्स को खड़ा करेंगे, बोलेंगे आपका मार्क कितना है, बोलो. पहला स्टूडेंट्स खड़ा हुआ, बोला मेरा 10 मार्क है. सेकंड स्टूडेंट्स खड़ा हुआ, मेरा 11 मार्क है. थर्ड स्टूडेंट्स खड़ा हुआ, बोला 5 मार्क है. फोर्थ स्टूडेंट्स खड़ा हुआ, मेरा 8 मार्क है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स खड़ा हुआ, बोला मेरा 13 मार्क है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स खड़ा हुआ, बोला मेरा 18 मार्क है. इस तरह से मार्क बोलते गए. कितने लोग बोलेंगे, 30 students are there, 30 students give their marks. Okay, so number of n is equal to 30. और इस तरह से हम 30 लड़कों का इंडिविजुअली अगर मार्क एक एक करके कलेक्ट किए, उसको बोलेंगे कौन सा, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज. हमें क्लियर? तो इंडिविजुअल सीरीज को भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन बोला जाता है. तो इंडिविजुअल सीरीज में एक ही वेरिएबल्स के सामने कुछ ना हर इंडिविजुअल्स का मार्क होता है. सो व्हाट इज वेरिएबल? यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स है मार्क्स. ओके, बिकॉज मार्क्स वेरी बिटवीन स्टूडेंट्स. Okay, anything which varies, anything which is measurable is known as variables. तो ये variables को statistics में हम x बोलते हैं. तो यहाँ पर x का मतलब क्या है, marks. x is equal to marks. ओके, कौन कितना मार्क्स है, सबका मार्क इंडिविजुअली आया है. समझ में आ रहा है क्या? अगर इंडिविजुअली मार्क आता है उसको इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं. तो इंडिविजुअल सीरीज कैसा है, अगर एक एग्जांपल दूंगे, x इज इक्वल टू 10, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 28, इस तरह का सीरीज दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज. ये कौन सा सीरीज का एग्जांपल है, इंडिविजुअल सीरीज. हमें क्लियर? व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज में मार्क्स इंडिविजुअली आता है, एक एक का मार्क आता है. तो इंडिविजुअल सीरीज को भी हम बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर एक्स देता है और डिफरेंट वैल्यूज देता है. व्हाट इज एक्स? एक्स मींस वेरिएबल. यहाँ पर एक्स मतलब मार्क्स. ओके, नाउ और एक तरह का हम मार्क भी कलेक्ट कर सकते हैं.
समझ में आ रहा है? और एक तरह का कौन सा मार्क कलेक्ट कर सकते हैं? और एक सीरीज है जिसको मैं बोल रहा था डिस्क्रीट सीरीज। व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज हम बात करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज ओवर हो गया था, अभी हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज क्या है और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मार्क कलेक्ट होता है। तो सेकंड सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज। तो अभी बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज क्या है। और एक सीरीज है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। दो तरह का सीरीज पढ़ा था, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। दो तरह का, तीन तरह का सीरीज था। अभी हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज। मैं बताया था कितने स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स थे और कितना मार्क था, 20 मार्क का क्विज किया था। तो क्या करूंगा मैं, जो 30 स्टूडेंट्स का मार्क होगा आइदर 0 होगा और नहीं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, किसी का कोई मार्क होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहां पर लिखूंगा मार्क, जिसको बोलते हैं x, फिर लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, या जिसको बोलेंगे f। मैं बताऊंगा f क्या है। तो एक लूंगा मार्क, एक लूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले बोलूंगा 0 कितने लोग रखे हैं, हाथ खड़ा करो। सपोज 2 लड़का का हाथ खड़ा किया, 0। इसका मतलब 0 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। सो दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी और रिपीटेशन। इसको बोलते हैं रिपीटेशन या फ्रीक्वेंसी। इसमें 0 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। 0 इज रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स। नेक्स्ट सिमिलरली मैं बोलूंगा 1 कितने का है, 1 कितने का है। सपोज 1 बोले, सपोज 5 लड़के का 1 है। अच्छा 2 कितने का है, 2 है सपोज 6 लड़के का। अगर 3 कितने का है, 3 किसी का नहीं है, 4 किसी का नहीं है, 5 कितने का है, नहीं है, 6 कितने का नहीं है, 7 मार्क रखे हैं, 7 मार्क रखे हैं 3 जन, 8 मार्क रखे हैं 2 जन। ओके देन 9 किसी का नहीं है, सपोज 10 मार्क्स रखे हैं, कितना, सपोज 5 जन। टोटल कितना होना चाहिए, 30। 2 5 7, 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 5 23। और 11 कितना रखे हैं, 11 रखे हैं सपोज 2 जन। और 13 कितना रखे हैं, 13 रखे हैं 5 जन। और हो गया कितना, टोटल हो गया 30। ये जो टोटल 30 लड़के हैं, ये 30 लड़के कितना मार्क रखे हैं, 0 रखे हैं, 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, 7 रखे हैं, 8 रखे हैं, 10 रखे हैं, 11 रखे हैं, 13 रखे हैं। Out of how much? Out of 20. Out of 20 marks, and these are number of students. So this is x and this is f. x का मतलब वेरिएबल, f का मतलब फ्रीक्वेंसी। x मतलब मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने लोग रखे हैं, कितने बार वो रिपीट हुआ है। सो रिपीटेशन, रिपीटेशन या फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में f लिखते हैं। तो हम 2 सीरीज पढ़ चुके हैं। इसको भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज को भी हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम 2 तरह का सीरीज पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा 2 तरह का सीरीज, पहला सीरीज पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज। व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में हमको सिर्फ एक्स देता था। एक्स मतलब क्या है, मार्क्स, मार्क्स देता था और इंडिविजुअली हम डाटा कलेक्ट करते थे। कैसा देता था, 2 2 5 2 7 8 10 11 13 0, किसी का इसी तरह से डाटा कलेक्ट करते। और एक सीरीज पढ़े डिस्क्रीट सीरीज। व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या किए, डिस्क्रीट सीरीज में हमारा जो डाटा आया वो डाटा कैसे आया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में आया। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स दिया गया और क्या दिया गया, एफ दिया गया। एक्स मतलब वेरिएबल, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी या रिपीटेशन। एक्स कितना, 0 कितने बार हुआ है, 2 लड़का रखा है। 1 कितने बार लड़का रखा है, 5 लड़का रखा है। 2 कितना लड़का रखा है, 6 लड़का रखा है। 7 कितने लड़का रखा है, 3 लड़का रखा है। इस तरह का वह डाटा देता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अभी हम बात करेंगे और एक तरह का डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे
कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम क्या करेंगे, डाटा सपोज मार्क्स से और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मार्क्स को हम बोलते हैं एक्स, एक्स मीन्स वेरिएबल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या एफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एफ है। तो एक्स दिया गया है, एफ दिया गया है। सपोज मैं बोला ये टोटल कितना मार्क है, 20 मार्क्स है टोटल, 20 मार्क्स 30 स्टूडेंट्स रखे हैं, 30 स्टूडेंट्स एग्जाम दिए। तो मैं बोल रहा हूं सपोज 0 से 5 कितने लोग मार्क रखें, समझ में आ रहा है, 0 से 5 कितने लोग मार्क रखें। सो 0 से 5 मतलब 0 जो रखा है वो हाथ खड़ा करेगा, 1 जो रखा है वो हाथ खड़ा करेगा, 2 जो रखा है वो हाथ खड़ा करेगा। इस तरह से 0 से 5 रखकर 6 आदमी रखा है। 5 से 10 के बीच में कितना आदमी रखा है, अच्छा तुम 5 से 10 के बीच में 8, समझ में आ रहा है। 10 से 15 के बीच में कितना आदमी रखा है, 10 से 15 के बीच में सपोज 4 आदमी रखें। ओके ना, नेक्स्ट 15 से 20 के बीच में कितना आदमी रखे हैं मैं पूछ रहा हूँ। 15 से 20 के बीच में 6 8 14 4 18 दो आदमी रखें। तो जिसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हुआ 20। तो टोटल 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 0 से 5 के बीच में 6 जन रखें, 5 से 10 के बीच में 8 जन रखें, 10 से 15 के बीच में 4 जन रखें, 15 से 20 के बीच में 2 जन रखें। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब आप पूछेंगे सर कोई आदमी 5 रखा है वो कहां पर रहेगा, वो यहां पर रहेगा सेकेंड सीरीज में। कोई अगर 10 रखा है वो थर्ड सीरीज में रहेगा, कोई अगर 15 रखा है वो फोर्थ सीरीज में रहेगा। इस तरह से हम अगर डाटा कलेक्ट करेंगे इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डाटा। कॉन्टिन्यूअस मतलब डाटा में कोई ब्रेक नहीं है, जैसे इसको बोलते हैं एक कॉन्टिन्यूअस लाइन। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस लाइन। लेकिन अगर लाइन इस तरह का है इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रेट लाइन। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस लाइन। कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर डाटा कॉन्टिन्यूअस 0 to 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, मतलब 0 से 20 के बीच में कोई भी डाटा होगा वो यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई आदमी 4.75 रखा है 4.75, वो कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 से 5 के बीच में। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअली डाटा कलेक्ट इस तरह से हो सकता है, लेकिन डिस्क्रेट में ऐसे करते जाएंगे बहुत परेशानी होगा। कोई आदमी अगर रखा है 8.25, वो डाटा कहां पर आ जाएगा, वो डाटा यहाँ पर आ जाएगा। कोई अगर रखा है 11.75, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब कोई इसके बीच वाला कोई भी डाटा होगा वो डाटा ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फिट बैठ जाएगा। तो मैं बताया था स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले स्टैटिस्टिक्स का जान है डाटा। डाटा कलेक्शन से लेकर डाटा अरेंजमेंट, डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। और डाटा अरेंज हो सकता है 3 वे में, इंडिविजुअल वे में, डिस्क्रेट वे में या कॉन्टिन्यूअस वे में। हमें क्लियर? नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप का कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डाटा। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंटरवल। बेटा क्लास इंटरवल क्या है? कॉन्टिन्यूअस डाटा को भी बोलते हैं क्लास इंटरवल डाटा। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज को मैं बताया था, हम लोग बात किए थे, यहाँ समझाया था। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स देता है, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ देता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल डाटा। ये कुछ स्पेशल टाइप का एक क्लास इंटरवल या कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डाटा के बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके, सो ये जो कॉन्टिन्यूअस इन क्लास इंटरवल डाटा स्पेशली बहुत तरह का हो सकता है। कुछ स्पेशल सीरीज का कॉन्टिन्यूअस डाटा हमको क्वेश्चन में दे सकता है। देयर कैन बी 4 टाइप ऑफ स्पेशल सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस डाटा और क्लास इंटरवल डाटा: एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव डाटा, ओपन एंडेड डाटा। अभी ये सब डाटा क्या है, ये कैसे क्लास इंटरवल का ये सब है वेराइटीज, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टिव मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ
क्लास इंटरवल डाटा। बेटा क्लास इंटरवल डाटा का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल डाटा का मतलब है कॉन्टिन्यूअस डाटा, जहां पर एक्स देता है और एफ देता है, लेकिन एक्स कौन सा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में देता है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह का डाटा को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डाटा या क्लास इंटरवल डाटा। फ्रीक्वेंसी में 5, 3, 2, 4, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल को हम बोलते हैं एन। एन इज इक्वल टू समेशन एफ। एन का मतलब क्या है? टोटल। 5 3 8, 8 2 10, 4 14 सपोज। बेटा इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डाटा। इस तरह का कॉन्टिन्यूअस डाटा का कुछ स्पेशल वेराइटीज है। कौन कौन सा वेराइटीज है? 4 वेराइटीज है। एग्जॉस्टिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये सारा मेथड्स क्या है एक एक करके बात करेंगे। ओके, फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा एग्जॉस्टिव मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस डाटा। एग्जॉस्टिव मेथड में क्या दिया हुआ है? एग्जॉस्टिव मतलब पूरा डाटा का विवरण यहाँ पर है। जैसे देखो मैं बताया था मार्क नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले लिखा हुआ है सबसे कम मार्क कितना हो सकता है? कम से कम मार्क कोई लड़का 0 लग सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमारे यहाँ पर तो नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमारा डाटा कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। तो पहले डाटा लिखा हुआ है 0 एंड लेस देन 5। इसका मतलब 0 या से ज्यादा और 5 से कम। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। सिमिलरली 5 एंड लेस देन 10। 5 मतलब जो 5 रखा है यहां पर आएगा, और 10 से कम। सिमिलरली 10 एंड लेस देन 15, 15 एंड लेस देन 25 कि 20 कितना है? 11। इसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं पहले देखेंगे। एक से एफ है, तो एक्स का मतलब क्या है? मार्क्स, एंड दिस मार्क्स आर इन व्हिच फॉर्म? इंटरवल फॉर्म। एफ का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन मेड। एफ का मतलब रिपीटेशन। तो देखेंगे अभी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 एंड लेस देन 5। इसका मतलब क्या है? 0 से 5 के बीच में। 0 एंड लेस देन 5, 0 से ज्यादा है, 5 से कम है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 to 5। बेटा समझ में आ रहा है क्या? 0 एंड लेस देन 5, 0 से ज्यादा, 5 से कम, तो 0 to 5। ओके, कितने आदमी हैं? 6 आदमी। 6 आदमी 0 से 5 के बीच में मार्क रखेंगे। फिर लिखा हुआ है 5 एंड लेस देन 10। इसका मतलब 5 एंड लेस देन 10 मतलब 5 से 10 के बीच में कितने रखे हैं? 25। सिमिलरली क्वेश्चन दिया हुआ है 10 एंड लेस देन 15। मतलब 10 से 15 के बीच में कितने रखे हैं? 11। फिर लिखा हुआ है 15 एंड लेस देन 20। इसका मतलब 15 से 20 के बीच में कितना रखे हैं? 11। कितने? यहाँ पर 8 है बेटा, यहाँ पर 8 है। ओके, 8 है यहाँ पर, और 15 से 20 के बीच में 11 है। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह का डाटा को हम क्या बोलते हैं? इस तरह का 15 से 20 के बीच में 11 है। इस तरह का डाटा को हम बोलते हैं कौन सा डाटा? एग्जॉस्टिव इंटरवल मेथड। एग्जॉस्टिव मतलब टोटल डाटा दिया हुआ है, 0 से मिनिमम मार्क 0 है, मैक्सिमम मार्क 20 है, इसके बीच में टोटल फिगर हमको दे दिया। इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटरवल डाटा। ओके, क्लास इंटरवल डाटा। नेक्स्ट मेथड एक्सक्लूसिव मेथड। व्हाट इज एक्सक्लूसिव मेथड? एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है? आपका जो फ्रीक्वेंसी देता है, अच्छा ये क्लास इंटरवल डाटा है। अगर क्लास इंटरवल डाटा है, आपको क्या देगा क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में एक्स देगा और क्या देगा? एफ देगा। व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है? एफ क्या है? एक्स का मतलब वेरिएबल है, और एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब रिपीटेशन है, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या रिपीटेशन, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, इसका मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है 10 से 20 के बीच में कितना रखे हैं? 12 रखें। 20 से 30 के बीच में 15 रखें। अच्छा, यहाँ पर इसको एक्सक्लूसिव क्यों किया जाता है? द अपर लिमिट, कोई आदमी अगर 20 रखा है वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो कहां पर आएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा। कोई आदमी अगर 30 रखा है वो यहाँ पर आएगा।
the upper limit is excluded from the series. The upper limit, ये जो अपर वाला ऊपर वाला चीज है ये एक्सक्लूड हो जाता है, वो सीरीज में ना आकर उसके नीचे वाले सीरीज में आता है, उसको बोलते हैं कौन सा सीरीज, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। तो एक्सक्लूसिव मेथड में जो अपर हैंड का फिगर है वो क्या नहीं होता है, वो इंक्लूड नहीं होता है पहले से लास्ट तक। समझ में आ गया? लास्ट में अगर कोई 50 रखा है वो इंक्लूड होगा, लेकिन कोई अगर 20 रखा है वो फास्ट में ना होकर सेकेंड वाला यहाँ पर हो जाएगा। कोई अगर 30 रखा है वो यहाँ पर ना होकर यहाँ पर रखा हो जाएगा। कोई अगर 40 रखा है वो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन कोई अगर 50 रखा है वो यहाँ पर ही इंक्लूड होगा, क्योंकि इसके नीचे वाला तो कोई सीरीज है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके, सो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाला फिगर वो इंक्लूड वो सीरीज में ना होकर उसके नीचे वाले में होता है। 10 से 20 के बीच में 20 यहाँ पर आएगा, 20 से 30 के बीच में 30 यहाँ पर आएगा, 30 से 40 के बीच में 40 यहाँ पर आएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, नाउ प्लीज सी नेक्स्ट वाला सीरीज को बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड। बेटा एक्चुअली ये इंक्लूसिव मेथड का मतलब क्या है, जहां पर ये ऊपर वाला फिगर जो है वो ऊपर वाला फिगर ऊपर में ही इंक्लूड होगा, नीचे में इंक्लूड नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 0 से 4 के बीच में 3 लड़के हैं, इसका मतलब 4 कहां पर है, 5 से 9 के बीच में है या ऊपर में, ये 0 से 4 के बीच में। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, 5 से 9 के बीच में ये है, तो 9 कहां पर है, यही सीरीज में है। 10 से 14 के बीच में 14 कहां पर है, यही सीरीज के बीच में, क्योंकि यहां पर 15 से 19 शुरू होता है। इस तरह का सीरीज को हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। लेकिन एक्चुअली ये कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में गैप है, तो इसीलिए एक्चुअली ये एक डिस्क्रीट टाइप का सीरीज है। इट्स ए नॉन कॉन्टिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ये जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इट्स ए नॉन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कभी कभी क्वेश्चन में ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैं समझाया था बेटा, इस तरह का चीज को कॉन्टिन्यूअस, कोई गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पर गैप है, 0 to 4, फिर गैप हो गया 5 से 9, फिर गैप हो गया, फिर 10 से 14, फिर गैप हो गया 15 से 19, इस तरह का। अगर इस तरह का फिगर रहेगा वो फिगर नॉन कॉन्टिन्यूअस है, या वो फिगर को हम बोलेंगे डिस्क्रीट है। हमें क्लियर? तो अगर इस तरह का सीरीज आपका है, इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करने से पहले आप इसको कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह पर इसको कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गैप निकालना पड़ेगा। व्हाट इज गैप? बेटा देखिए, इसका हाईएस्ट कितना है 4, इसका लोएस्ट कितना है 5, 4 और 5 के बीच में कितना गैप है, 1 गैप है। तो यहां पर गैप है 1 गैप, अगर मैं समझा रहा हूं। अच्छा, यहाँ पर 5 से 9 तक गया, फिर कहां से शुरू हुआ, 10 और 9 के बीच में गैप कितना, 1। फिर 10 से 14 तक गया, फिर शुरू हुआ 15 से, तो गैप कितना है 1। फिर 15 से 19 गया तो गैप कितना है 1। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला डालेंगे गैप बाई 2। सो व्हाट इज गैप? गैप इज इक्वल टू 1, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। अभी क्या करेंगे, इस साइड से 0.5 माइनस करेंगे, माइनस 0.5, और इस साइड में 0.5 प्लस करेंगे। फिर यहां से इस साइड में 0.5 माइनस करेंगे और इस साइड में 0.5 प्लस करेंगे। इस साइड से 0.5 माइनस करेंगे, इस साइड से 0.5 प्लस करेंगे, इस साइड से 0.5 माइनस करेंगे और इस साइड्स में 0.5 प्लस करेंगे। तो कैन यू टेल नाउ व्हाट विल बी द डाटा? डाटा इज लाइक फॉलोज। x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, फर्स्ट कितना है, 0 से 0.5 माइनस किए तो माइनस 0.52, यहां पर 4 से 0.5 प्लस किए, ये हो गया 4.5। फिर आ गया इसका f कितना है 3, इसका f है 3। नेक्स्ट डाटा आ गया कितना, 5 है,
5 से 0.5 माइनस होगा, 5 से 0.5 माइनस हो जाएगा तो 4.5 से यहाँ पर 0.5 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.5। फिगर कितना है 7। फिर यहाँ पर 10 से शुरू हुआ है, 10 से 0.5 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9.5। फिर यहाँ पर 14 में 0.5 प्लस हो जाएगा 14.5। इसका डाटा कितना है 4, फ्रीक्वेंसी कितना है 4। फिर यहाँ पर 15 से 0.5 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14.5, और 19 में 0.5 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19.5। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 2। तो टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कितना है 3 7 10, 4 14 2 16। तो n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 16। बेटा किसको समझ में नहीं आया? तो इंक्लूसिव मेथड में हम इंक्लूसिव को जो नॉन कॉन्टिन्यूस था अभी ये कॉन्टिन्यूस हो गया। देखो 0.5 से 4.5, 4.5 से 9.5, 9.5 से 14.5, 14. अभी कोई गैप नहीं रहा। तो नॉन कॉन्टिन्यूस को कॉन्टिन्यूस करने का एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है गैप बाई 2 फॉर्मूला। तो गैप बाई कितने का गैप है पहले निकालेंगे, फिर गैप को 2 में डिवाइड करेंगे, हर साइड से उसी को पहले इस साइड से लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे, राइट साइड में प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे, राइट साइड से प्लस करेंगे। अच्छा मैं और एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। सपोज x दिया हुआ है और दिया हुआ है f दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है 0 से 8, फिर दिया हुआ है 10 से 18, फिर दिया हुआ है 20 से 28। ओके 20 से 28। फिर दिया हुआ है सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 से 38। ओके एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 3 2 2 3। तो व्हाट इज टोटल n इज इक्वल टू 10। अभी देखेंगे इसको, ये कॉन्टिन्यूअस है क्या? ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉन कॉन्टिन्यूअस सीरीज है क्योंकि गैप है। तो अभी हम इसको कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे? हमारा फॉर्मूला है गैप बाई 2। यहाँ पर गैप कितने का है? ये 8 में खत्म हुआ है, 10 में शुरू हुआ, तो गैप कितने का है 2। ये 18 में खत्म हुआ, 20 में शुरू हुआ, गैप कितने का 2। 28 में खत्म हुआ, 30 में शुरू हुआ, गैप कितना है 2। तो गैप बाई 2 फॉर्मूला डालेंगे। गैप बाई 2, गैप है 2 का, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो जो आया फिगर, ये 1 को इस साइड में माइनस करेंगे और इस साइड में प्लस करेंगे, इस साइड में माइनस करेंगे, इस साइड में प्लस करेंगे, इस साइड में माइनस करेंगे, इस साइड में प्लस करेंगे, इस साइड में माइनस करेंगे, इस साइड में प्लस करेंगे। तो आ जाएगा आपका फिगर। कितना हो जाएगा? अभी इसको कैसे कंटिन्यूअस बना देंगे तो बताइए। फर्स्ट वाला में कितना हो जाएगा? ओके x और f, x f। x में क्या क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है यहाँ पर 0 से -1, तो हो जाएगा -1 से लेकर, अब ये 8 करेंगे, 8 में +1 तो 9 हो जाएगा, -1 से 9 कितना है 3। फिर हो जाएगा 10 से -1 9, 9 से ये हो गया 19, कितना हो जाएगा f, f है 2। देन 20 से -1 करेंगे, ये हो जाएगा 19, 19 से ये हो जाएगा 29, 19 से 29 कितना है 2। फिर है 30 से 1 माइनस करेंगे 29, 29 से ये 1 प्लस करेंगे 39, कितना 3। तो टोटल कितना हो रहा है बेटा? n हो गया 10। बेटा समझ में आ रहा है अभी? तो अगर क्वेश्चन में नॉन कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है और उसको कॉन्टिन्यूअस करना है, कैसे करेंगे? हमारा एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? गैप बाई 2। ये वाला फॉर्मूला डालकर पहले साइड से माइनस करेंगे, इस साइड लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे, राइट साइड में प्लस करेंगे और आपका फिगर आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कुछ स्पेशल टाइप का कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में। अभी एक टाइप का और एक टाइप का कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज ओपन एंडेड सीरीज। बेटा ओपन एंडेड सीरीज क्या है? ओपन एंडेड सीरीज एक इस तरह का सीरीज है जो ओपन है। इसका मतलब ओपन है मतलब उसका दो छोर में क्या है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, वो पता नहीं।
अगर एक सीरीज में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं है, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। तो ओपन एंडेड सीरीज एक ऐसा सीरीज है जहां पर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। उस तरह का सीरीज में आपको असम्पशन लेना पड़ेगा, रीजन लॉजिक लगाकर, अपना दिमाग लगाकर आप असम्पशन लेंगे मिनिमम वैल्यू कितना है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है। अभी देखेंगे इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको निकालना है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस देन 10 10 से कम, 10 से कम मतलब 10 से 9 भी कम है, 8 भी कम है, 7 भी कम है, तो कितने कम पता नहीं। फिर दिया हुआ है लेस देन 10, फिर दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये सब तो ठीक है। 40 एंड एबव, 40 से ज्यादा, बेटा 40 से ज्यादा कितना, 40 से 50 भी ज्यादा है, 60 भी ज्यादा है, 70 भी ज्यादा है, तो हमको पता नहीं। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू पता नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं। अगर इस तरह का एक सीरीज है जहां पर हमको मिनिमम वैल्यू पता नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं, उस तरह का सीरीज को हम बोलेंगे ओपन एंडेड सीरीज। अभी ये ओपन एंडेड सीरीज को हमको असम्पशन लेकर उसको एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाना है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाएंगे। इसका मतलब कैसे, अभी देखेंगे, एक लॉजिक लगाओ, यहाँ पर गैप कितने का है, 10, 10 से 20 में 10 का गैप, 20 से 30 में 10 का गैप, 30 से 40 में 10 का गैप, तो ऊपर में 10 का गैप रहेगा, नीचे में भी 10 का गैप रहेगा। तो इस सीरीज को कैसे करेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, एक्स हो गया, फिर एफ हो गया। अच्छा, एक्स का मतलब क्या है, मार्क्स, वेरिएबल, और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी या रिपीटेशन, कितने बार रिपीटेशन हुआ है। तो पहले वाला को लेस देन 10 को हम लिख सकते हैं कितना का, सब में गैप 10 है तो इसमें भी गैप 10 रहेगा, 0 to 10। बेटा 0 to 10 क्योंकि 10 गैप है, करेंगे तो कितना हो गया, कितने लड़के हैं, 10। फिर सेकेंड वाला तो ठीक है, दे दिया है 10 से 20 कितना है, 25। फिर 20 से 30 कितना है, 20 से 30 कितना है, 20 से 30 है 40, और 30 से 40 कितना है, 30 से 40 है बेटा 15। फिर लास्ट में हम बात करेंगे 40 एंड एबव। 40 एंड एबव में इसमें भी गैप कितना रहेगा, 10, 40 से 10 एबव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 से 50 कितना, 10। बेटा इसको बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज में क्या क्या नहीं देगा, मिनिमम वैल्यू नहीं देगा, और क्या नहीं देगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। आपको मिनिमम वैल्यू को एज्यूम करना है और मैक्सिमम वैल्यू को एज्यूम करना है, तो जाकर आप ओपन एंडेड सीरीज का क्वेश्चन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। मैं एक थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं आपको, देखेंगे। सपोज एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लेस देन 10, फिर दिया हुआ है 10 से 30, फिर दिया हुआ है 30 से 60, फिर दिया हुआ है 60 एंड एबव। बेटा देखो यहां पर एफ है सपोज 5, 3, सपोज 4, 8, एन कितना होगा, एन इज द टोटल ऑफ एफ, ये टोटल ऑफ एफ कितना है, मिला देंगे, 8 4 12, 3 15, 5 20, एन इक्वल टू 20। बेटा समझ में आ रहा है क्या। अभी हम देखेंगे यहाँ पर ओपन एंडेड है, मतलब मिनिमम कितना पता नहीं, मैक्सिमम कितना पता नहीं, लेकिन आप अगर थोड़ा लॉजिक लगाएंगे आपको पता चल जाएगा गैप कितने का है। देखो अभी यहाँ पर लेस देन 10, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर गैप कितने का है, 10 से 30 के बीच में गैप 20 का है। अच्छा 30 से 60 के बीच में गैप 30 का है। इसका मतलब गैप बढ़ता जा रहा है, कितने का गैप बढ़ता जा रहा है, 10-10 का गैप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर गैप कितना होगा, कोई आइडिया करेंगे क्या। यहाँ पर गैप अगर आपको पता चलेगा 10 होगा तो जाकर 10 से 10 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, 20 से 10 बढ़ेगा तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 से 10 बढ़ेगा तो गैप कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। बेटा ये गैप दोनों समझ में आ रहा है, थोड़ा लॉजिक लगाकर आपको पता चल रहा है पहले में गैप 10 होगा और दूसरे लास्ट में गैप 40 होगा। अगर इस सीरीज को हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एफ है, तो फिगर क्या हो जाएगा,
लेस देन 10 इसको लिखेंगे हम 0 to 10। फिर सेकेंड वाला हो जाएगा 10 से 30, थर्ड वाला हो जाएगा 30 से 60 और लास्ट वाला हो जाएगा 60 से 100। और फ्रीक्वेंसी कितना है 5 3 4 8। तो टोटल कितना है एन कितना है, एन इज द टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल्स। 8 4 12 3 15 5 20। बेटा समझ में आ रहा है? सो दिस इज नोन एज ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कहीं पर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में असम्पशन लेकर एज्यूम करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। असम्पशन लेकर उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले समझेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर हम समझेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सबको समझेंगे। मैं बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्क्रीट सीरीज को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट सी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पहले बात करेंगे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। सपोज क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल्स दिया हुआ है, वेरिएबल्स मतलब मार्क। सपोज जो चीज वेरी होता है, वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स को हम एक्स बोलते हैं। ओके, मार्क्स दिया हुआ है, सपोज मार्क्स दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 से 40 के बीच में मार्क। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी सपोज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 3 2 और दिया हुआ है सपोज 3। सो व्हाट इज एन, एन का मतलब कितना है, टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। 5 3 8 2 10 10 5 3 8 2 10 3 13। अगर क्वेश्चन में इस तरह का डाटा दिया गया है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है। और एक चीज है, और एक चीज है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले मैं समझाता हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CF। बेटा 0 to 10 कितने आदमी हैं, 5। फिर 20, 10 से 20 कितना है, 3। 5 थे और 3 मिले, टोटल हो गया कितना, 8। 20 से 30 और 2 मिले, 8 + 2 कितने हो गए, 10। फिर 10 थे और 3 मिले, टोटल कितना हो गया, 13। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको क्वेश्चन में मार्क देगा, वेरिएबल देगा और फ्रीक्वेंसी देगा, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कहीं कहीं पर क्वेश्चन में वेरिएबल दे देता है, ये दे देगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देगा, मतलब ये वाला फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। कौन सा वाला फिगर नहीं देगा, ये दोनों दे देंगे। क्या क्या दे देगा, वेरिएबल देगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा। अगर ये दोनों फिगर देता है क्वेश्चन में, सिर्फ वेरिएबल देगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्स और CF देता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या देता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्वेश्चन में एक्स देगा और क्या देगा, एफ देगा। हमें क्लियर? तो एक्स और एफ आपको अगर क्वेश्चन में देता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में अगर एक्स देगा और CF देगा क्वेश्चन में, उसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्वेश्चन में क्या क्या देगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक्स देगा और CF देगा।
इस तरह का क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है। कौन कौन सा? लेस देन टाइप का और मोर देन टाइप का। तो अभी लेस देन क्या है, मोर देन क्या है, ये समझेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये दो तरह का होता है। यहाँ पर क्या देता है, एक्स देता है, सीएफ देता है। और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का है, एक है लेस देन टाइप और एक है मोर देन टाइप। तो लेस देन टाइप क्या है, मोर देन टाइप क्या है, इसको पढ़ेंगे और हमारा क्लास आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट व्हाट इज लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मार्क दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, अगर लेस देन इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा हर एक जगह पर क्या लिखा हुआ है, लेस देन, या हर एक जगह पर मोर देन, या हर एक जगह पर बिलो लिखा होगा। क्या लिखा होगा, हर एक जगह पर लेस देन ना लिखकर क्या लिख सकता है, बिलो लिखेगा, बिलो लिखेगा, या बिलो लिखेगा, या बिलो लिखेगा। इस तरह का अगर लिखेगा क्वेश्चन में तो इसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। मतलब एक्स और सी एफ दिया हुआ है, हमको इससे एक्स और एफ निकालना है। क्लियर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन थोड़ा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है थोड़ा देखो। सपोज एक लड़का इस तरह का मार्क रखे, कुछ लड़के हैं वो इस तरह का मार्क रखे हैं। कौन कौन सा तरह का मार्क है, मार्क ये है, क्या है, ये मार्क है 0, ये मार्क है 10, ये मार्क है 20, ये मार्क है 30, ये मार्क है 40, ये मार्क है 50, ये मार्क है 60। दीज आर द मार्क्स। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोलता है लेस देन 10, 10 से कम कितने लोग रखे हैं, 6 लोग रखे। बेटा 10 से कम कितना लोग रखे हैं, 10 से कम मतलब कौन है, 10 से कम अभी देखते हैं 10 से कम कौन है, 10 से कम ये वाला आदमी, ये वाला आदमी कितने हैं, बोलता है लेस देन 10 6। अगर लेस देन 10 6 है तो हमको पहले पता चल गया एक्स और एफ हमको निकालना है। लेस देन 10 इससे कम 6 आदमी है, तो 0 से 10 के बीच में कितने आदमी, 6 आदमी। फिर क्वेश्चन बोल रहा है लेस देन 20 18 आदमी। बेटा लेस देन 20 कौन है, ये 20 है। अगर ये 20 है इससे कम कितने आदमी है, 18 आदमी। बेटा यहां से यहां तक तो 6 है, लेकिन यहां से यहां तक 18 है, तो ये दोनों के बीच में गैप कितने का है, कौन बोलेगा, अरे ये तो 18, ये यहां से यहां तक 18 है, यहां से यहां तक 6 है, 18 से 6 माइनस कर दो, यहां पर फिगर आ जाएगा 12। तो 10 से 20 के बीच में कितने आदमी रखे हैं, 10 से 20 के बीच में हमको पता चल गया कितने आदमी रखे हैं, 12 आदमी रखे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर तो कैसे निकाले 12, इसी से इसी को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, 18 से 6 को माइनस कर दिए। समझ में आ रहा है क्या? फिर लेस देन 30, लेस देन 30 मतलब यहां से यहां तक क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां से यहां तक कितने हैं, 28 है। बेटा हमको पता है यहां से यहां तक कितना है, 20 से नीचे कितने हैं, 18 है, और 30 से नीचे कितना है, 28 है। तो 20 से 30 के बीच में कितने आदमी हैं, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको किससे माइनस करेंगे, इस 28 को 18 से माइनस कर देंगे, 10 आदमी। फिर 30 से 40 के बीच में कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, 40 से 28 को माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, 19 आ जाए, बाद में आ जाएगा। फिर आएगा कितना, 40 से 50 के बीच में कितना आदमी है, कैसे करेंगे, माइनस करेंगे। किससे किसको माइनस करेंगे, 56 से 47 को माइनस करेंगे। 56 से 47 को माइनस करो तो 9 आता है। फिर 50 से 60 के बीच में कितने आदमी हैं, निकालेंगे। 50 से 60 के बीच में क्या होगा, ये 60 है, 60 से 56 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 से 56 को माइनस करो तो 4 आ जाएगा। तो इसको अगर टोटल करेंगे हमको पता चल जाएगा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका आएगा 60।
बेटा लेस देन सीरीज में क्या करते हैं, लेस देन सीरीज हमको दे देता है पहले लेस देन या बिलो, जो भी देगा क्वेश्चन में। लेस देन सीरीज में लेस देन या बिलो देगा। बिलो 10 6 है, बिलो 10 मतलब शुरू हुआ आगा 0 से, 0 से 10 6 है। फिर दिया हुआ है बिलो 20 18 है, तो 10 से 20 के बीच में क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे। 6 और 18 को माइनस कर दिया, कितना आया, 6 और 18 का माइनस कर दिया 12 आया। फिर 20 से 30 के बीच में क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे। फिर 30 से 40 के बीच में क्या करेंगे, इस दोनों को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब माइनस करते करते हम क्या कर सकते हैं, इसको किस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेस देन टाइप का सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमको क्या दे देगा, अगर एक्स और सीएफ क्वेश्चन में कभी देता है, उसको लेस देन टाइप का, उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स और एफ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक तरह का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन टाइप या इसका दूसरा नाम है एबव टाइप। क्वेश्चन में मोर देन अगर हर जगह पर लिखा जाएगा, इसको बोलेंगे मोर देन टाइप, या इसको हम बोलेंगे कौन सा टाइप, एबव वाला टाइप। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन में इस तरह से दे सकता है एबव 10 या एबव 0, एबव 10, एबव 20, इस तरह का क्वेश्चन में दे सकता है। एबव वाला सीरीज को या मोर देन वाला सीरीज को, ये भी एक्स दिया हुआ है, मोर देन दिया हुआ है या एबव दिया हुआ है, ये एक्स है, ये सी एफ है। व्हाट इज सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरह का डाटा को हमको एक्स और एफ में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे बेटा, देखो ये लाइन है, सपोज ये है 0, फिर है 10, फिर है 20, फिर है 30, फिर है 40, फिर है 50, फिर है 60, ये लाइन है। अच्छा, 0 से ज्यादा कितना है, 0 से ज्यादा यहां तक है, 0 से ज्यादा ये टोटल वाला 0 से ज्यादा है 60। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है 10 से ज्यादा 54 है, 10 से ज्यादा यहां से यहां तक दिया हुआ है पूरा 54। इसका मतलब कैन यू टेल 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 0 से 10 के बीच में कितना होगा, 60 से 54 को माइनस कर दो, क्योंकि यहां से लास्ट तक 60 है, यहां से लास्ट तक 54 है, तो यहां से यहां तक का फिगर कितना होगा, 6 होगा, माइनस कर देना है। तो पहला आ गया एक्स आ गया और एफ आ गया। एक्स क्या दिया हुआ है, 0 से 10 तक का फिगर मेरे को मिल गया कितना, 0 से 10 तक वाला फिगर 6 है। फिर हम क्या करेंगे, 0 से 10 गया, फिर हमको सपोज और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोर देन 20, मतलब यहां से 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा कितने हैं, 20 से यहां तक है, 20 से ज्यादा कितने हैं, 42। इसका मतलब क्या है बेटा, 10 से ज्यादा 54 है और 20 से ज्यादा 42 है, तो 10 और 20 के बीच में कितने हैं पता चल जाएगा। ये 54 से 42 को माइनस कर दो, तो 10 से 20 के बीच में आ जाएंगे, 54 से 42 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, 8। सिमिलरली क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 से ज्यादा, बेटा 30 से ज्यादा कितने हैं, 30 से ज्यादा देखेंगे, 30 से ज्यादा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 30 से ज्यादा है मतलब पूरा लास्ट तक, 30 से ज्यादा है 32। बेटा 20 से ज्यादा 42 है, 30 से ज्यादा 32 है, तो 20 और 30 के बीच में कितना होगा, 42 और 32 का गैप जितना है 10, तो आ गया 20 और 30 के बीच में, 20 to 30 के बीच में आ गया मेरा कितना, 20 से 30 के बीच में मेरा आ गया 42 माइनस 32 10। बेटा समझ में आ रहा है। फिर आ गया उसी तरह से हम बनाएंगे। अच्छा 30 से ज्यादा 32 है, 40 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, 40 से ज्यादा कितने हैं, 40 से ज्यादा, तो 40 से ज्यादा क्वेश्चन में दे दिया है, 40 से यहां तक ज्यादा है, 40 से ज्यादा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 13 है, 40 से ज्यादा 13 है। अगर 40 से ज्यादा 13 है तो हम देखेंगे 40 से ज्यादा अगर 13 है तो ये 13 है,
40 से ज्यादा। बेटा 30 से ज्यादा 32 है, 40 से ज्यादा 13 है, तो 30 से 40 के बाद बीच में कितना है, 32 और 13 के बीच में गैप निकालेंगे, तो 30 से 40 के बीच में आपका आ जाएगा 32 और 13 के बीच में गैप, 32 और 13 के बीच में गैप 19। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके ऊपर, लास्ट में हम बात करेंगे, अच्छा क्वेश्चन फिर दिया हुआ है, अच्छा 40 से ज्यादा 13 है गया, 50 से ज्यादा 4 है, मतलब 50 से यहां तक 4 है। बेटा 40 से ज्यादा 13 है और 50 से ज्यादा 4 है, तो इन दोनों का बीच में गैप में आ जाएगा 50 से 40 से 50 के बीच का, 40 से 50 के बीच में कितना है, 13 से 4 गया तो 9 है। और क्वेश्चन दिया हुआ है 50 से ज्यादा 4 है, बेटा 50 से ज्यादा तो 50 से कितना ज्यादा, 60 मैक्सिमम है, तो 50 to 60 कितना है, 4 है। इसको टोटल बनाएंगे, एन आएगा 60। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़े, आज के क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़े। मैं बताया स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। ये किसका साइंस है, ये साइंस है डाटा का। स्टैटिस्टिक्स इज ए डाटा साइंस, इट्स ए डाटा साइंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है, फिर अरेंज किया जाता है, फिर इंटरप्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़े स्टैटिस्टिक्स में डाटा जो कलेक्ट होता है वो अरेंज होता है सीरीज के हिसाब से। बेटा नेक्स्ट हम पढ़े सीरीज कितने तरह का है, सीरीज 3 तरह का है। कौन कौन सा 3 तरह का सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम डिफरेंट वेराइटी देखे, एग्जॉस्टिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज, एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज। ये सब में जो नॉन कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसको हम कैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में देखें। नेक्स्ट हम पढ़े फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक्स देता है, वेरिएबल देता है और फ्रीक्वेंसी देता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सारा फ्रीक्वेंसी को अगर एक एक करके मिलाएंगे हमको मिलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है, दैट इज एक्स देता है और सीएफ देता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरली मोर देन या लेस देन फॉर्म में होता है। तो ये मोर देन या लेस देन फॉर्म वाला डाटा को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्स या एफ में। सो मोर लेस देन और एक्स मोर देन डाटा को भी हम बोलते हैं बिलो और एबव डाटा। तो बिलो और एबव डाटा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे एवरेज के बारे में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो विथ दिस आई conclude my lecture of today. Okay, thank you all. You can contact me in my email id biswamishra@gmail.com, and this video will be uploaded in a particular website. That website is known as YouTube channel. That channel is known as, please mark this channel. This channel is Commerce Forum, everything in capital. Commerce Forum, everything in capital. Kindly subscribe to this channel for viewing different videos, and please circulate this among your students, among your friends, among your relatives for getting free business mathematics classes. Thank you all.